Hello students. So in this class we will see next 10 marks, okay, from the specimen physics paper of ICSE board. Okay, so this is Sovik Das and I have come here to discuss those 10 marks. So let's see our first question, and before that, if you have not subscribed this channel, please subscribe and hit the like button. So our first question, this, yes. So here question number 2a, the usable form of mechanical energy. Usable form of mechanical energy is kinetic energy. Okay, usable form of mechanical energy is kinetic energy. Question number 2b, this 1 horsepower is equal to, these all are direct questions. 1 horsepower is equal to 746 watt. Okay, 1 horsepower, this one is there in your book, equal to 746 watt. Okay, next question, question number 2c. So question number 2c, if A and B of same mass can climb the third floor of the same building in 3 minutes and 5 minutes respectively, then ratio of their powers of A to B in an ideal situation is, okay, so ratio of their power, so you have to find finally PA by PB, right? Okay, so same mass same, climbing to the third floor, both of them are climbing to the third floor, that means H is also same. Okay, okay, now work done by A equal to mgh, work done by B equal to mgh. Mg is the force and h is the displacement, so mgh is the work done. So work done is same, and power, formula of power is work done by time. Okay, so PA by PB equal to work done by A by TA into, for PB T will go up, TB by WB. Okay, now work dones are same, so WA WB cancel out. Now TB by TA, TB how much, 5 minutes, and TA 3 minutes. No need to convert them because both of them are in minutes and we are finding ratio. So 5 minute by 3 minute. So the ratio will be 5:3. Okay, here if you are asked what is the ratio of work done, WA is to WB, then it will be 1:1, because here mass same and height by the two persons or two objects, whatever, that is also same. Okay, okay, going to next question, question number 2D. Yes, if the center of gravity of a meter scale of mass 80 gram lies at the 45 centimeter mark. Okay, so each scale are of mass 80 gram in the options and center of gravity is lying at 45 centimeter. So center of gravity here, for this case here, for this case here, and for this case here. Then which of the following diagram will show the balanced position of the scale? Balanced position means clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Okay, so here look, fulcrum position same for all the options. Okay, and center of gravity same, it is 45 45 45 and 45. It is 80 ग्राम, मास ऑफ द स्केल इज 80 ग्राम, सो मास कहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे 80 ग्राम, इस केस में भी 80 ग्राम, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 80 ग्राम, इस केस में यहाँ पे 80 ग्राम. सो क्या चेक करना है, क्या फाइंड करना है, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि यही करेक्ट ऑप्शन है. क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है, देखो इस पोजीशन में एट 100 सेंटीमीटर मार्क the mass is kept to balance the scale, that is different. Okay, so we'll find that mass only. Okay, this is variable here, this is variable, so we'll find the unknown mass which we have to keep at 100 centimeter mark, जिसके लिए क्या होगा, स्केल बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा. ओके, सो ये जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे जो वेट है, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ. यस, यहाँ पे जो वेट है, वेट फलक्रम के अबाउट ऐसे रोटेट होगा. दैट मीन्स ये हो गया किस तरह का रोटेशन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. और यहाँ पे जो वेट है, जो हम लोगों ने पहले W ले लेते हैं, अननोन वेट, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अबाउट फलक्रम. सो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स किसके लिए आएगा, ये वेट के लिए. ओके, दिस वेट के लिए. सो W इंटू दिस डिस्टेंस 60 to 100, हाउ मच, 60 to 100 मीन्स 40 सेंटीमीटर. नो नीड टू चेंज द यूनिट, नो नीड टू चेंज द यूनिट.
यूनिट को लिखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। सो नो नीड टू चेंज द यूनिट। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा ड्यू टू वेट ऑफ द स्केल, दैट इज 80 GF, 80 ग्राम इज द मास, वेट होगा 80 GF इनटू पोजीशन कहाँ से कहाँ, 45 to 60, 45 to 60 मीन्स हाउ मच, 45 to 60 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कैंसिल देम एंड फाइंड W। सो W क्या होगा, 80 GF इनटू, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्ड आउट, सो 15/40, 40 2s are 80 एंड 2 15s are 30, यूनिट क्या होगा, ग्राम फोर्स। सो देखो किस ऑप्शन में 30 GF है, ऑप्शन नंबर 3, सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है वेट विच वी आर पुटिंग एट 100 सेंटीमीटर मार्क, जिसके लिए क्या होगा, पूरा के पूरा स्केल बैलेंस्ड पोजीशन में रहेगा। तो उसके लिए वेट का क्या मिल रहा है, 30 GF कहाँ पे, एट 100 सेंटीमीटर मार्क। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2E। यस, यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन है एंड इसका मार्क्स है 2। इफ यू लुक एट द स्पेसिमेन पेपर, इट इज़ अ 2 मार्क क्वेश्चन। A body has kinetic energy 250 joule, so kinetic energy given 250 joule. इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², राइट। एंड मास ऑफ द बॉडी गिवन, मास इज गिवन 5 kg, ऑल आर इन SI यूनिट। सो देन चूज द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। सो हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, हाफ mv² इक्वल टू 250। सो हाफ इंटू m इज गिवन 5 इंटू v² इक्वल टू 250। Then calculate V, okay, so V square will be 250 into 2 by 5, 5 5s are 25, 50, 50 into 2 is 100, okay, so V will be root over 100 means 10 meter per second, root over 100 means 10 meter per second, okay। and momentum क्या होगा, momentum का मतलब क्या है, momentum equal to mass into velocity। so mass क्या है, 5 kg एंड वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 50, यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। सो 50 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट का भी ध्यान रखना होगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड इज द मोमेंटम एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिट का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2F। यस, सो हियर सब पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है यूजिंग द सेम डायग्राम। A girl at rest at gate of her society, which is 3.2 meter above the road, comes down the slope AB on a cycle without pedaling. Okay, you can see this diagram. G is given 10 Newton per kg means 10 meter per second square. Okay. First question, mechanical energy possessed by the girl at B. So at B means at this position. At this position at B, what will be the mechanical energy? At B, what will be the mechanical energy? Here the cycle is not moving, okay, so no kinetic energy, cycle is not moving, no kinetic energy. Now this cycle is at some height, okay, with respect to ground, at some height 3.2 meter. Height means here we will get gravitational potential energy, right, gravitational potential energy। so correct option 4, ठीक है। तो इसी के ये डायग्राम को यूज़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर F2, यहाँ पे देखो वही सेम डेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एट पॉइंट बी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। द वेलोसिटी विथ व्हिच गर्ल रीचेस पॉइंट A, सो एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट A व्हाट विल बी देयर, काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर। And will there be any potential energy? No, because the point A is lying on the ground, okay. We are measuring the height of point B with respect to this line, okay. This line we are considering as ground. So point A is lying on the ground, so at point A, zero potential energy, okay. Potential energy will be 0. That means here all the potential energy at point B will convert into kinetic energy at point A, okay, using conservation of mechanical energy. Kinetic energy at B plus potential energy at B equal to kinetic energy at A plus potential energy at A। तो यहाँ पे देखो potential energy at A 0 and kinetic energy at B 0, तो बचा क्या, potential energy at B, that is formula is mgh, and kinetic energy at A half mv²। m m कैंसिल हो गया, तो V कितना होगा,
भी हो जाएगा √2GH। अब वैल्यू को पुट कर दो, सो भी हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ भी इक्वल टू √2 इंटू जी दिया है यहाँ पे 10 एंड एच कितना है 3.2 राइट, यस 3.2। तो देखो 3.2 इंटू 10 दैट इज 32 इंटू 2 64, √64 मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 3। समझ में आ गया, ये है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से, ठीक है, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसी डायग्राम को यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 F3। यस, देखो वही सेम डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट ए। पिछले स्लाइड में ही बोला कि काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बिकॉज बी पॉइंट में क्या है, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला है mgh, और ए पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट ग्राउंड में है तो ये पॉइंट में क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला है 12 mv²। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए। और क्वेश्चन में क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल एट ए, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे यू बी दैट इज mgh। सो m कितना मिला, m दिया है 40, g इज 10 एंड h इज 3.2। ओके, सो 3.2 इंटू 10 32 इंटू 40, सो यू विल गेट 0, सो 1280 जूल। ठीक है, ये एक डायरेक्ट प्रोसेस है। और एक प्रोसेस तुम यूज़ कर सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या फाइंड किया, भी फाइंड किया, राइट। वेलोसिटी एट ए कितना मिला था 8 मीटर पर सेकेंड। तुम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 12 mv²। सो 12 इंटू 40 इंटू v² मीन्स 8² 64। अल्टीमेटली विल गेट द सेम रिजल्ट, 2 इंटू 64 32 इंटू 40 1280 जूल। ओके, यू कैन यूज एनी प्रोसेस। ओके, फाइन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन F4. Okay, this is the last question. Yes, with the same diagram, the potential energy of the girl when the C reaches the midpoint of the slope AB. Okay, यहाँ पे midpoint, suppose its name is C. C point में किस तरह का एनर्जी रहेगा, C point में पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, क्योंकि C point is at some height from this ground. Okay, from this ground C point is at some height. Okay, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा, पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए। ये हाइट क्या होगा, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो ये हाइट हो जाएगा 1.6 मीटर। 3.2 का हाफ, 3.2/2 मिड पॉइंट, सो 1.6 मीटर हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करो, यू इक्वल टू mgh, कहाँ पे, एट पॉइंट सी विच इज़ द मिड पॉइंट। ओके, सो m इज़ 40, g इज़ 10 एंड h इज़ यहाँ पे 1.6। मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 10 16 इंटू 40, 16 इंटू 40 मीन्स 4 16 जार 64, 640 जूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही छोटा छोटा क्वेश्चन है, वर्क पर एनर्जी से भी था और फर्स्ट चैप्टर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूज़ करके वहाँ से भी कुछ न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो ये हो गया आज का 10 मार्क का क्वेश्चन। और इसके बाद देख लो एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज ऑफ द टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक्स का अप्रॉक्सीमेट वेटेज, जो मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। ये है 16 to 17 मार्क फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। इन द फर्स्ट चैप्टर दिस 3 पार्ट्स आर देयर, फोर्स, वर्क पर एनर्जी एंड सिंपल मशीन। फोर्स one topic, work per energy another topic, and simple machine third topic. This is the one unit. From this unit 16 to 17 marks. Second unit is light. From light again 16 to 17 marks, and sound is the third unit. From this unit 6 to 8 marks, total 40. ठीक है, तो ये हो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रॉक्सीमेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मैंने बताया, और इसके हिसाब से तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आज का कुछ डिस्कशन। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। सो दिस इज सोबिक दास साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।